Temperate evergreen forest. So in the last video, we discussed about the tropical deciduous forest, and in the last video, we discussed about the tropical evergreen forest, right? So before moving forward, let me just quickly revise everything we have discussed so far. So from the Salima story, we came to know that at different places, we will find different vegetations. Why? Because there are few factors which work there to affect the vegetation of a place. The factors like rainfall, temperature, the thickness of soil, moisture, the height at which that place is present. So these are some factors which influence the vegetation. Then we discussed about the categories of the vegetation, natural vegetation, that we have divided the natural vegetation into three broad categories: forests, grasslands, and shrubs. And then we started with the forest. And there we discussed about the tropical evergreen forest, the forest which are found in the areas, means tropical areas. This is our earth, this is equator, this is tropic of Cancer, this is tropic of Capricorn. So this is the area which we call tropical area, means the between the tropic of Cancers and the Capricorn. So the evergreen forests are the forests which found between these latitudes and at the places which receive rainfall throughout the year. That's why we call them evergreen, because they remain green throughout the year. They do not shed their leaves in one season. They do not shed their leaves completely, and that's why they remain evergreen. Then we discussed about the tropical deciduous forest. These are the area forests which are again found between the tropical area, as the name suggests, right? Tropical. Tropical means you don't have to cram anything. You can just look at these words and can understand what they are signifying. Tropical means the areas between Tropic of Cancer and Capricorn. So the tropical deciduous forests are the forests which are found in the tropical region and at the places between these latitudes, between the Tropic of Cancer and Capricorn, the places which do not receive the rainfall throughout the year, means which experience some seasonal changes. Like during a particular time, these areas will experience summer, at other there will be winter, at other there will be monsoon, spring or autumn. So the areas which experience seasonal changes, so at those places we will find the tropical deciduous forest. So in the tropical deciduous forest, the trees shed their leaves at a particular season, in the very hot season, so that they can conserve their water. Because we discussed that the leaves lose the water of the tree in the atmosphere due to the transpiration. So that's why, to conserve the water, the trees shed their leaves in the dry season. And now we will discuss about the temperate evergreen forests. So again, you don't have to cram anything. You can just look at the word temperate. So you can recall that in the 6th class, we discussed about the latitudes and longitude. Hope you remember. याद है या भूल गए कि नहीं मैम, अब तो हम बुढ़े हो गए हैं, आप कहाँ याद 6th क्लास का, अब तो हम 7th क्लास में पहुंच गए हैं. हाँ, तो दिस इज आवर अर्थ, दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड. तो हमने अर्थ को कुछ इमेजिनरी लाइंस में बांटा हुआ है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी. तो जो वर्टिकल लाइंस हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और जो लेटिट्यूड्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उनको हम लेटिट्यूड्स कहते हैं. ये इमेजिनरी लाइंस हैं. अर्थ सच में इस तरीके से अर्थ पे कोई लाइंस नहीं बनी हुई, ये सिर्फ हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इस तरीके की इमेजिनरी लाइन बना ली है. तो the latitude which is at the center of the earth, that is called 0 डिग्री लैटिट्यूड और इक्वेटर. ठीक है, इक्वेटर से ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कितने पे है? 23.5 डिग्री पे. 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमें मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. फिर नीचे सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा, ये मिलेगा हमें 23.5 डिग्री साउथ में. और साउथ और नॉर्थ मतलब कि इक्वेटर से ऊपर जो भी एरियाज हैं वो नॉर्थ हैं, और इक्वेटर से नीचे जो भी एरियाज हैं वो साउथ हैं. फिर इसके ऊपर होता है यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, ये लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ पे हमें मिलेगा. और यहाँ पे नीचे होता है एंटार्क्टिक सर्कल, और ये लगभग 66.5 डिग्री साउथ में होता है. ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. ठीक है, तो ये हो गया एंटार्क्टिक सर्कल. अब जैसा कि हम अभी तक डिस्कस कर ही रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, तो ये वाला जो रीजन है, ये पूरा, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन. और जब हम इससे ऊपर जाएंगे, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक,
और नीचे हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक। तो ये वाला जो रीजन है ये होता है टेम्परेट रीजन, ठीक है, ये वाला होता है टेम्परेट रीजन। और जब हम इससे भी ऊपर जाएंगे यहाँ पे मतलब पोलर रीजन में, आर्कटिक सर्कल के ऊपर और यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे, ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं टॉरिड रीजन। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है। तो इस तरीके से हमने कुछ एरियाज को बांटा हुआ है, हम अपने लैटिट्यूड्स के बेसिस पर इन एरियाज को बांट, राइट। तो अब मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए टेम्परेट को लेकर। तो ये जो रीजन है, ये जो फॉरेस्ट है, ये उन रीजन्स में पाए जाते हैं जो कि टेम्परेट रीजन है, मतलब कि द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। और नीचे बात करें तो एरिया ऑफ जो है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। सो लेट मी शो यू ऑल दिस पिक्चर। तो देखो ये जो बीच की लाइन है इसे हमने इक्वेटर कहा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो एरियाज हैं ये एकदम सेम डिग्रीज पे हैं, बट नॉर्थ और साउथ का फर्क है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में है कैंसर और नीचे है 23.5 डिग्री साउथ में है कैप्रिकॉर्न। और ऊपर 66 डिग्री नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल और नीचे है एंटार्क्टिक सर्कल। सो अब ये वाले एरिया के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज टू फॉरेस्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस एरिया, ठीक है। इस एरिया को हम कहते हैं टेम्परेट रीजन, ये जो आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, और नीचे टेम्परेट रीजन है यहाँ पे, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिका के लिए। ये वाला जो एरिया है ये भी टेम्परेट है, ये वाला जो एरिया है ये भी टेम्परेट रीजन है। तो इन दो एरियाज के बारे में अभी हम बात करेंगे कि इन एरियाज में किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। I know the video will get a little bit longer, but it is very important to tell you guys about these latitudes and longitudes because अब तो आप लोग बूढ़े हो गए हो ना, आपको 6th क्लास का पढ़ाया कहाँ याद रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको वापस से बता दूं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब क्या है और कौन सा रीजन जो है वो टेम्परेट है, कौन सा ट्रॉपिकल है। तो एक एरिया जो रह गया है इसके ऊपर, ये वाला रीजन जो होता है उसे हम कहते हैं टॉरिड रीजन, ठीक है, जो एंटार्क्टिक सर्कल से नीचे और आर्कटिक सर्कल से ऊपर, ये वाला जो रीजन है ये टॉरिड, ये टेम्परेट और ये ट्रॉपिकल, ठीक है। अब मैंने आपको पूरा जो है डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं और जो कि एवरग्रीन रहते हैं, ठीक है, जो कि पूरे साल हरे भरे रहते हैं। अब आपको यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमने सिर्फ अर्थ के जो लैटिट्यूड्स हैं, जो लोकेशन है, उसके बेसिस पर इन फॉरेस्ट को बांट दिया है, ठीक है। जो ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, जो टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं, तो इस तरीके से हमने सिर्फ इनके लैटिट्यूड के जो लोकेशन है उसके बेसिस पर हमने वो बांट दिया है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है टेम्परेट वाले, वो ऐसे रीजन में हैं जो कि टेम्परेट है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल का बीच वाला एरिया है, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल से इनके बीच में जो एरिया है वो वाला टेम्परेट रीजन में ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, मतलब कि मिड लैटिट्यूडनल मतलब वही टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, और वो भी कोस्टल रीजन में, मतलब कि जो कोस्टल रीजन है, जो समुद्र के किनारे वाले रीजन है, जो समुद्र तट है, ऐसे इलाकों में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब कि टेम्परेट रीजन में जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ईस्टर्न तरफ, ठीक है, ये नॉर्थ है ऊपर, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। तो सारे कॉन्टिनेंट्स के जो ये वाला एरिया है, ईस्टर्न एरिया है, कोस्टल रीजन है, वहाँ पे हमें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि यही क्यों देखने मिलते हैं, तो पहले मैं आपको मैप में इन रीजन्स को दिखा देती हूँ। तो ये जो फॉरेस्ट हैं वो आपको कहाँ कहाँ देखने मिलेंगे, आपको देखने मिलेंगे साउथ ईस्ट यूएसए में, मतलब कि लगभग यहाँ पे, साउथ चाइना, मतलब कि यहाँ पे चाइना के साउथ में, साउथ ईस्ट ब्राजील, मतलब कि यहाँ पे लगभग की जो ब्राजील का साउथ है उसका भी ईस्टर्न इलाका, वहाँ पे आपको ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये देखने मिलेंगे। अब हमने बात की कि ये ऐसे एरियाज में देखने मिलेंगे जो कि कोस्टल रीजन्स हैं, टेम्परेट वाले रीजन में। तो कोस्टल रीजन्स ही क्यों? अब एवरग्रीन के नाम से तो आपको पता चल गया है कि ये वो फॉरेस्ट हैं जो कि पूरे साल जो है हरे भरे रहते हैं। क्यों रहते हैं? जैसा कि हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पढ़ा था कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती। तो अब आप बोलोगे कि ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में तो हमें समझ आया था कि बारिश बहुत ज़्यादा क्यों होती है, वहाँ ज़्यादातर ह्यूमिड मौसम रहता है,
जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए वहाँ पे पानी की एवोपरेशन ज़्यादा होती है और इस वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में कंटिन्यूअसली बारिश होती है। बट यहाँ पे क्यों होती है, टेम्परेट रीजन में बारिश क्यों होती है इन एरियाज में स्पेसिफिकली, ये जो हमने बात की है कि साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना और साउथ ईस्ट ब्राज़ील। तो यहाँ पे इसलिए होता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सीज हैं, तो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स उत्पन्न होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स टाइम टू टाइम आते हैं और जब साइक्लोन्स आते हैं तो जाहिर सी बात है तो वो अपने आसपास वाले इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश के साथ आते हैं, आसपास वाले इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं ये फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनके आसपास वाले जो एरियाज हैं उनमें फ्रीक्वेंटली बारिश होती है और जहाँ पे फ्रीक्वेंटली बारिश होगी वहाँ पे हमारे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो दौड़े दौड़े आ जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने मिलते हैं। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं और ऐसे रीजन्स में, टेम्परेट रीजन में भी वो वाले रीजन जहाँ पे कोस्टल इलाका है, जहाँ पे फ्रीक्वेंटली बारिश आती है, ठीक है। अब ये जो फॉरेस्ट है इनमें आपको हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड दोनों ही तरह के ट्रीज देखने मिलेंगे, ठीक है। हार्डवुड और सॉफ्टवुड जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि जो कि बहुत हार्ड वुड्स हैं, जो बहुत ताकतवर है एक तरीके से हम कह सकते हैं। सॉफ्टवुड जो कि थोड़ी सॉफ्ट सी वुड है जिन पेड़ों की। तो इन पेड़ों के अलग अलग फायदे होते हैं, जैसे सॉफ्टवुड जो है बैट वगैरह बनाने में काम आती है, हार्डवुड जो है जो हार्ड लकड़ी होती है वो हमारे फर्नीचर वगैरह बनाने में हेल्प करती है। तो इन सब चीज़ों के अलग अलग फायदे हैं। तो ये दोनों ही तरह के जो पेड़ हैं, हार्डवुड भी और सॉफ्टवुड भी, ये हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि ओक ट्री हो गया, पाइन और यूकलिप्टस। और इसके अलावा भी आप अपने गूगल पे थोड़ा सा सर्च करना कि किस किस तरीके के पेड़ पौधे और हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट में, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में स्पेसिफिकली पाए जाते हैं।